Good morning, children. I am your teacher Shweta Singh. Welcome to my online class. Today we will read class 8 translation lesson 4. A visit to Cambridge. This is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them differently abled. यह कहानी ऐसे दो दिग्गजों के मुलाकात की है जो शारीरिक रूप से अक्षम थे. स्टीफन हॉकिंग, an astrophysicist who suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer. स्टीफन हॉकिंस जो खगोल शास्त्री थे और जो बीमारी से पीड़ित थे, पैरालिसिस की, जिसमें व्हील चेयर पर बैठकर केवल उसके बटन को दबाकर कंप्यूटर के बोलते थे. फिरदौस कांगा वॉज अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई. फिरदौस कांगा लेखक और पत्रकार थे जो मुंबई में रहते थे. कांगा वॉज बोर्न विद ब्रिटल बोन्स एंड लाइक हॉकिंग मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर. कांगा जो थे वो ब्रिटल बोन नाम के एक अलग बीमारी के शिकार थे और हॉकिंग की तरह ही वो भी व्हील चेयर पर ही घूमते थे. कैम्ब्रिज वॉज my metaphor for England, and it was strange that when I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. कैम्ब्रिज इंग्लैंड की यात्रा के दौरान फिरदौस कांगा को अन्य स्थानों के साथ कैम्ब्रिज भी जाना था क्योंकि उनके लिए इंग्लैंड कैम्ब्रिज का ही दूसरा नाम था, क्योंकि यहाँ पर ही वह स्टीफन हॉकिंग से मिले थे. It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has all at the university. यात्रा के दौरान ही गाइड ने स्टीफन हॉकिंग के बारे में, उनकी बेचारगी के बारे में बताया था और यह भी कि वह आइजैक न्यूटन के उत्तराधिकारी हैं और यूनिवर्सिटी में उन्हीं की जगह पर हैं. And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, on one of the bestseller ever, lived here. और मैंने शुरू किया क्योंकि मैं ये भूल चुका था लगभग कि ये बहुत ही ब्रिलियंट और पूरी तरीके से अशक्त खगोल भौतिकविद हैं और अ ब्रीफ हिस्ट्री के लेखक भी हैं, जो अपने समय की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तकों में से है. When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside, phoned Stephen Hawking's house. वॉकिंग टूर ख़त्म करके मैं पहुंचा टेलीफोन बूथ पर और वहाँ पे स्टीफन हॉकिंग के घर पर फ़ोन मिलाया. There was his assistant on the line and I told him I had come in a wheelchair from India. Perhaps he thought I have prepared myself all the way to write about my travels in Britain. I had told so Professor Hawking, even 10 minutes would do half an hour, he said, from 3:30 to 4. उनका सहायक फ़ोन की लाइन पर था और उससे मैंने कहा कि मैं इंडिया से आया हूँ व्हील चेयर पर. तो उसने, और मैं भी एक राइटर हूँ और ब्रिटेन में यात्रा करने के लिए आया हूँ, मैं प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ, चाहे 10 मिनट या आधे घंटे के लिए ही. तो उसने कहा ठीक है, 3:30 to 4, आधे घंटे के लिए. एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर. और अचानक मुझे घबराहट और कमजोरी महसूस होने लगी. Growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. और इस तरह से बड़े होना कि लोग कहें कि बहादुर बनो और हमारे पास एक बहादुरी का चेक है जिसको साइन करने के लिए भी हम अक्षम हैं. The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. केवल एक चीज़ आपको मजबूत और ताकतवर बनाती है कि आप जैसा ही व्यक्ति कोई बहुत बड़ी सफलता हासिल किया हो. Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. और तब आप जानते हैं कि यह कितना संभव है और आपको कहाँ पहुँचना है, आप उससे भी आगे पहुंच सकते हैं. I haven't been brave, said his
embodied computer voice. The next afternoon I have had no choice. मैं बहादुर होने का दावा नहीं करता. उन्होंने माना कि मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था. Surely I wanted to say living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. But I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता था कि रचनात्मक रूप से शरीर को छोड़ना एक अलग विकल्प है, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि मैंने हर बार दोषी महसूस किया जब मैंने उनसे बात करने के लिए उन्हें जवाब देने के लिए मजबूर किया. There he was tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long pale fingers. वहाँ वह अपने हाथ में छोटे से स्विच पर टैप कर रहा था और अपने कंप्यूटर पर शब्दों को खोजने की कोशिश कर रहा था. केवल थोड़ी सी हलचल के कारण वह अपनी लंबी उंगलियों को छोड़ दे रहा था. Every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion. हर बार उसकी आंखें कुंठित थकावट में बंद हो जाती. And sitting opposite him, I could feel his anguish, the mind beyond with thoughts that came out in frozen phrases and sentences, stiff as corpses. और उसके विपरीत में बैठे हुए उसके मन की पीड़ा को दूर कर सकता हूँ उन विचारों के साथ जो जमे हुए वाक्यांशों और वाक्यों के रूप में सामने आए हैं और यह कठोर हैं. See you then tomorrow. जय हिंद, जय भारत.